یہ پی ٹی آئی کی چال ہے کہ دیکھو سعد رضوی بھی پاکستان فوج کے خلاف ہو گیا۔ تو سعد رضوی صاحب کا جو بیان ہے اور پی ٹی آئی کے جو بیان ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سعد رضوی صاحب یہ ان کو کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ جس طرح حکومت چلانا چاہتے ہیں اس طرح حکومت آپ نہیں چلا سکتے۔ کبھی سعد رضوی صاحب نے، ٹی ایل پی نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ غدار ہو، آپ امریکہ کے غلام ہو، ووٹ آپ کے پاس ہے، سیٹیں آپ کے پاس ہیں، یعنی کہ آپ سمجھتے ہو کہ 90% عوام آپ کے ساتھ ہے، تو پھر ایک مٹھی بھر جس کو آپ کا لیڈر کہتا تھا اس کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ یا تو یہی سمجھتے ہیں نا، یہ تو مانتے ہیں نا کہ جو سعد رضوی صاحب ہے وہ دلیر لیڈر ہے، وہ بکتا نہیں ہے، وہ جھکتا نہیں ہے، یا اس کے کارکن ہیں وہ بکتے نہیں ہیں، وہ جھکتے نہیں ہیں، وہ قربانیاں دے سکتے ہیں، وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ ان کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا پی ٹی آئی سعد رضوی صاحب کو استعمال کر رہی ہے؟ سعد رضوی صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بیان ہیں ان کو تروڑ مروڑ کے پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہے ہیں، اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا کچھ تو سعد رضوی صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں، کچھ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، کچھ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح پی ٹی آئی پاک فوج کے خلاف ہے، اسی طرح سعد رضوی بھی پاک فوج کے خلاف ہو گیا۔ لبیک کے کارکنوں میں مایوسی ہے۔ کیا سعد رضوی صاحب نے ان کو یقین دہانی کرا کے پی ٹی آئی کو کیا غلطی کی ہے؟ کیا یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ کوئی بڑی سازش یا کوئی گیم تو نہیں کر رہی؟ ناظرین، اس کے اوپر بات کرنی ہے کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت یعنی کہ ایک نیگیٹو قسم کا یعنی کہ تاثر دیا جا رہا ہے تحریک لبیک کے حوالے سے۔ بات ناظرین کیا ہو گئی کہ پی ٹی آئی کی یعنی کہ جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ایکٹیو قسم کے جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، صنم جاوید ہو گئے یا اس کے علاوہ عمر ڈار کی بیٹی ہو گئی، یہ سعد رضوی کے اوپر کیا الزام لگا رہے ہیں یا سعد رضوی صاحب کے متعلق کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ سب ناظرین آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ سمجھانا تو ہم نے تحریک لبیک کے کارکنوں کو ہی ہے کہ وہ بہت جلدی دل تھوڑا کر جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ہوا کو یوں کہ جو خبریں چلیں کہ پی ٹی آئی اور تحریک لبیک کا اتحاد ہو رہا ہے، اس چیز کو جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے اس نے آڑوں ہاتھوں سعد رضوی صاحب کی ایک تقریر ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے ابھی الیکشن کے بعد، اس کو وہ خوب وائرل کر رہے ہیں، بہت زیادہ وائرل کر رہے ہیں اور تعریفیں کر رہے ہیں کہ چلو دیر آیا درست آیا، جیسا ہم کہتے تھے آج سعد رضوی بھی ہمارے ساتھ ہو گیا۔ اس ویڈیو کا کس طرح غلط مطلب نکال کے یعنی کہ جس طرح خود وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زہر اگلتے ہیں یعنی پاکستان کی پوری فوج کے خلاف، اس طرح وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو ٹی ایل پی ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے وہ سعد رضوی صاحب کی تقریر رکھنی ہے، جس تقریر کو یعنی کہ یہ لوگ بنیاد بنا کے اس کو وائرل کر رہے ہیں اور کیسے توڑ مروڑ کے اس کا جو مطلب ہے وہ تبدیل کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ ناظرین یہ سنو۔ کیا طاقت ہے تمہاری؟ یہ طاقت ہے کہ رات کے 11 بجے لائٹ بند کر کے، انٹرنیٹ بند کر کے، مواصلات کے تمام نظام بند کر کے اور اندر اسلحہ کے زور پر آ کر رزلٹ کو چینج کروانا، یہ طاقت ہے؟ یہ طاقت نہیں ہے، یہ غنڈہ گردی ہے، یہ بدماشی ہے، یہ سراسر زیادتی ہے۔ اگر اس طاقت کے بل بوتے پر آپ کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ آپ ملک کو چلا لیں گے، آپ نظام کو درست کر لیں گے، آپ حکومت بنا لیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہم ایسی طاقت کو اپنے باؤ بوٹ کی ٹھوکر کے اوپر رکھتے ہیں۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سنا سعد رضوی صاحب کیا کہہ رہا ہے کہ کیا طاقت ہے تمہاری؟ یہ طاقت ہے کہ رات کے 11 بجے لائٹ نیٹ بند کر کے اندر اسلحے کے زور پر رزلٹ تبدیل کیا گیا، یہ طاقت ہے؟ یہ طاقت نہیں ہے، یہ گنڈا گردی ہے، یہ بدماشی ہے، یہ زیادتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ اس طاقت کے بل بوتے پر آپ کو یقین ہے کہ ہم پاکستان کا نظام چلا لیں گے، پاکستانی حکومت چلا لیں گے، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم ایسی طاقت کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔
नादरीन, ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, पीटीआई सोशल मीडिया के ऊपर, और ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि देखो साद रिजवी भी एस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो गया है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। मैं इसकी हकीकत आप लोगों के सामने रखता हूँ कि किस तरह जो सांप होता है ना, वो सांप ही होता है। और ये भी आप लोगों के सामने वाजे कर दूं कि इमरान खान और कौमी यूथ, इनकी एक पॉलिसी है, एक ही सोच है, और जो इस टाइम मौजूदा पीटीआई है ना अली गौहर खान की, वो अलग है। अब मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि इसकी हकीकत क्या है, फिर कौन कौन इसको शेयर कर रहे हैं और क्या क्या लिख रहे हैं, वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। नाज़रीन, सबसे पहली बात है कि साद रिजवी साहब ने क्या कहा है। साद रिजवी साहब ने कहा है कि जो ताकत के जोर पे आप लोग रिजल्ट चेंज कर रहे हो, ये ताकत नहीं है, ये बुज़दिली है, ये बदमाशी है, या ये ज़्यादती है। ठीक है, अगर आप समझते हो कि इस तरीके से करके आप हुकूमत चला सकते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम ऐसी ताकत को जूती की नोक के ऊपर रखते हैं। अब नाज़रीन देखना कि साद रिजवी साहब के जितने भी बयान हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, चाहे अब इलेक्शंस के बाद या उस इलेक्शन से पहले, अल्फाज के ऊपर गौर करना कि साद रिजवी साहब ये तासर देने की कोशिश करते हैं अपने बयानात में, यानी कि पहले जो साद रिजवी साहब के बयान है कि आप जिसको ला रहे हैं, जिस मुर्दे में आप जान डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हुकूमत चलाएगा, तो वो नहीं चला सकता है। ठीक है, अच्छा, उससे पहले जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक साद रिजवी साहब के बयान है कि जनरल साहब, यानी कि आपकी मुबारकबाद पेंडिंग है, मैं आपको उतने तक मुबारक नहीं दूंगा जब तक आप गुस्ताखों को जवाब नहीं देती। यानी कि साद रिजवी साहब के अब भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जितने भी बयान हैं, तो साद रिजवी साहब ने उस बयान में ये तासर देने की कोशिश किया है कि जिस तरह आप हुकूमत चलाना चाहते हैं, आपका जो तरीकाकार है हुकूमत चलाने का, वो गलत है, उससे हुकूमत नहीं चल सकती। और जो ताकत का नाम लिया है तो बोलता है ऐसी ताकत जो गुंडागर्दी या ज्यादती वाली ताकत है, इसको हम जुती की नोक पे रखते हैं। लेकिन अगर आप इमरान खान के बयान सुन रहे हैं या पीटीआई सोशल मीडिया के बयान सुन रहे हैं फौज के मुतल्लिक, तो वो इंतहाई खतरनाक हैं। इमरान खान ने कहा है मीर जाफर मीर सादिक। इमरान खान कहता है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो अमेरिका के साथ मिली हुई है, वो गद्दार है। पीटीआई की जितनी भी जूथियां हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज गद्दार है, वो मुल्क को तोड़ना चाहती है, इसलिए वो इमरान खान को आगे नहीं आने देती। अगर आप पीटीआई की सोशल मीडिया टीम में जाएं तो जिस ताकत को साद रिजवी साहब पांव की जुती के ऊपर रख रहा था, यानी कि गुंडागर्दी और बदमाशी की जो ताकत है, लेकिन अगर आप पीटीआई की सोशल मीडिया जाएं तो वो कहते हैं कि हमारी फौज ने 75 साल में एक मरला जमीन भी इंडिया से नहीं लिया, हम इसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, ये अपने ही लोगों को मार रहे हैं, अपने मुल्क में ज्यादतियां कर रहे हैं, इंडिया में वो क्यों नहीं जाते? अगर इंडिया या ईरान या कोई आदमी भी पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमला करता है तो उस हमले से ज्यादा पीटीआई की सोशल मीडिया टीम पाक फौज के ऊपर हमला करती है। तो साद रिजवी साहब का जो बयान है और पीटीआई के जो बयान है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। साद रिजवी साहब ये उनको कहने की कोशिश कर रहा है कि आप जिस तरह हुकूमत चलाना चाहते हैं उस तरह हुकूमत आप नहीं चला सकते। कभी साद रिजवी साहब ने, टीएलपी ने यह नहीं कहा है कि आप गद्दार हो, आप अमेरिका के गुलाम हो, आप अमेरिका के इशारे पे चल रहे हो, ये कभी भी टीएलपी ने नहीं कहा है। और इस बयानात को सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करके पीटीआई वाले ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह हम फौज के खिलाफ हैं, इसी तरह साद रिजवी साहब भी फौज के खिलाफ है। अब नादरीन, इस बयान को किस किस ने शेयर किया और क्या क्या चीज़ साथ लिखी, वो मैंने आप लोगों के सामने रखनी है। इस बयान को नाजरीन, जो लैबा उमर डार है, जो उमर डार की बेटी है, जिसकी दादी के लिए सबसे पहले जो आवाज उठाने वाला सियासी रहनुमा था वो हाफिज साद रिजवी साहब थे। और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है ना कि ये सांप है, सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए। और ये जो मैं कह रहा हूं कि इमरान खान और यूथियों की एक ही पॉलिसी है और मौजूदा पीटीआई की जो पॉलिसी है वो अलग है। तो ये लैबा उमर डार क्या कहती है कि देर आया दुरुस्त आया, यानी साद रिजवी साहब के इस बयान को उसने टैग करके ट्विटर के ऊपर लगाया कि साद रिजवी साहब देर से आए लेकिन बहुत जबरदस्त बयान दिया। नीचे क्या लिखती है, हम उम्मीद करते हैं कि हाफिज साहब पैसों की बोरी मिलने पर आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे।
यानी ज़ात में ये तनकीद भी कर रहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि अगर साद रिजवी साहब को कोई पैसे देगा तो फिर भी ये आवाज़ बंद नहीं करेंगे, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि पीटीआई जो लबैक वाले हैं ना, वो आप लोगों की तरह गधे नहीं हैं, या अदारे जो हैं ना वो आप लोगों की तरह बेवकूफ़ नहीं हैं कि आप साद रिजवी साहब के इस बयान को इमरान खान और कौमी यूथ के बयान के बराबर ले रहे हैं। तो ये आप लोगों की गलत फहमी है। साद रिजवी साहब ने जब भी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद किया, बिल्कुल मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो मंसूबा बनाया था उनकी नीयत के ऊपर शक नहीं हो सकता है, वो गद्दार नहीं है, वो अमेरिका के एजेंडे पे काम नहीं कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि इमरान खान हुकूमत नहीं चला सकता है, साद रिजवी नहीं चला सकता है, हम नवाज शरीफ को लेके आते हैं तो उससे इख्तिलाफ हो सकता है, उसके ऊपर आदमी तनकीद कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जी ये नवाज शरीफ को अमेरिका के कहने की वजह से लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान के जर्नल अमेरिका के पीछे हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। मैं इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल इत्तफाक नहीं रखता हूँ। अब दूसरा नाज़रीन ट्वीट किया है, एक मियाँ फराज हुसैन है, उसने ट्वीट किया है कि आगे बढ़ने के लिए टीएलपी के साथ भी मशावरत करेंगे। इमरान खान ने एक मीडिया से जब अदालत में गए तो उसने एक बयान दिया, उसको उसने कोट किया कि इमरान खान भी कहता है कि हम आगे बढ़ने के लिए पीटीआई का टीएलपी का साथ देंगे। भाई टीएलपी का साथ देने की क्या ज़रूरत है आप लोगों को? आप लोगों के पास तो सीटें हैं, आप लोगों तो जीती हुए हैं, टीएलपी के पास तो एक सीट भी नहीं है, तो आप लोगों को टीएलपी की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, टीएलपी इनके पास नहीं गई है। एक और मैं आप लोगों को पुराना बयान उठा के दिखाऊंगा कि पीटीआई वाले किस तरह खुशियाँ मना रहे हैं। दूसरा नाजरीन, इनकी एक बड़ी एक्टिव किस्म की जो लड़की है फलक जावेद खान, उसने इस साद रिजवी साहब की जो वीडियो है वो लगाई, उसके ऊपर उसने क्या बयान दिया कि साद रिजवी का बयान, रात को असले के जोर पर जल्द तब्दील करवाना ये ताकत है, ये ताकत नहीं, ये गुंडागर्दी है। यानी कि ये शेयर कर रहे हैं, यानी कि बताने की कोशिश कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि जिस तरह हम आपको गुंडागर्दी का हम कहते हैं, हम आपको अमेरिका के एजेंट कहते हैं, हम आपको मीर जाफर और मीर सादिक कहते हैं, जैसा कि हम आपको गद्दार कहते हैं, तो इस तरह साद रिजवी साहब भी कह रहा है। लेकिन साद रिजवी साहब इस तरह नहीं कह रहा है। साद रिजवी साहब उनके तरीकाकार से खुल के इख्तलाफ कर रहा है, और जो ताकत का वो पाँव के नीचे कहता है तो वो कहता है कि जो ताकत आपने इस्तेमाल की, यानी गुंडागर्दी, नाजायज ताकत, उस ताकत का इख्तलाफ कर रहा है साद रिजवी साहब, ना कि पाकिस्तान आर्मी की ताकत का इख्तलाफ कर रहा है जिस तरह यूथिये करते हैं, जो इमरान खान ने अपनी तकरीरों में किया है। नाजरीन, उसके बाद एक पूरा पुराना बयान है कि देखो ये तो अपने आप को कहते हैं कि हम तो 90% में जा रहे हैं, ठीक है, जीते हुए हैं। तो एक पुराना इनका एक यानी बोल न्यूज़ का एक इन्होंने थंबनेल उठाया, एक वीडियो बयान यूट्यूब से उठाया, वो नए में शेयर कर रहे हैं कि साद रिजवी भी खान के साथ खड़े हो गए, आते ही बड़ा ऐलान कर दिया, पीटीआई में नई जान आ गई। भाई तहरीक लबैक की वजह से पीटीआई में क्यों जान आ गई? क्या वो साद रिजवी साहब वाली बात सच है कि जो नाचने वालियों के जो बच्चे होते हैं वो हकीकी आज़ादी की जंग नहीं लड़ सकते? भाई वोट आपके पास है, सीटें आपके पास हैं, यानी कि आप समझते हो कि 90% अवाम आपके साथ है, तो फिर एक मुट्ठी भर जिसको आपका लीडर कहता था उसकी क्यों ज़रूरत पड़ गई? या तो यही समझते हैं ना, ये तो मानते हैं ना कि जो साद रिजवी साहब है वो दलेर लीडर है, वो बिकता नहीं है, वो झुकता नहीं है, या उसके कारकुन है वो बिकते नहीं है, वो झुकते नहीं है, वो कुर्बानियां दे सकते हैं, वो डट के खड़े हो जाते हैं, इसलिए आप उनको साथ मिलाना चाहते हो। अगर आप पहले ज़मान पाक में जब इमरान खान के साथ हुआ था तो उस टाइम अगर आप मेरी वीडियो सुनते हैं तो उस टाइम भी मैं ये कह रहा था कि उस टाइम भी इमरान खान कोशिश करता था कि किसी तरीके से टीएलपी को साथ मिलाया जाए। तो नाजरीन, बरकफ कोई ऐसी बात नहीं है, इनकी जो सोशल मीडिया है प्रोपेगेंडा करती है, झूठ फैलाती है, गलत चीज़ें मिक्स करके अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइम टीएलपी ये बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके सामने व्हाट्सएप में या फेसबुक या ट्विटर या कहीं भी अगर ऐसे बयान आते हैं तो ये पूरी चाल है, ये पीटीआई की चाल है कि देखो साद रिजवी भी पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गया ना। साद रिजवी साहब जहाँ जो भी फ़ौज की गलती होगी, जर्नल की गलती होगी, उसकी निशानदेही करेगा, उसको बोलेगा, उनकी तरीकाकार से इख्तलाफ करेगा।
ہرگز یہ نہیں کہے گا کہ پاکستان کی فوج غدار ہے یا پاکستان کی فوج امریکہ کی ایجنٹ ہے یا پاکستان کی فوج بیرونی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہے. نہیں, یہ طریقے لیبیک کی پالیسی نہیں ہے. یہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتا دیا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم ملک کو چلانا چاہتے ہیں, لیکن عمران خان بھی نہیں چلا سکتا ہے, سعد رضوی بھی نہیں چلا سکتا ہے, لیکن ملک کو تو چلانا ہے. چلو غلط طریقے سے چلائیں, جو 2 نمبر طریقے سے چلائیں, لیکن چلائیں گے ملک کو. تو وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ملک کے لیے کر رہے ہیں جو وہ غلط کر رہے ہیں. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ